Let me speak human. Good morning, India. Good morning, humanity. I have to explain the phenomenon of partition and the role of Baba Sahab, Dr. Ambedkar, Jogendranath Mandal, Netaji, Fazlul Haq, and Simant Gandhi. What they did and what they could have done to stop partition. In Bengal, Mr. S.K. Biswas, who had been writing on false gods and had been associated with Bamsed, the Kashiram movement, he has been telling that Baba Sahab betrayed Bengal. Last day, I was speaking on the first speech of Baba Sahab in the Constituent Assembly. Mr. Chumbar from Punjab, he said exact the same thing, that Baba Sahab compromised with Gandhi and Nehru, and it was historical blunder by Ambedkar that he signed the Pune Pact. The Matua family, the family of Harichand and Guruchand Thakur, who particularly Harichand Thakur, who led the Indo revolt and who opted for Matua religion to negate the Brahminical Hindutva in Bengal, and it was a movement of the peasantry, and this movement ended in to select Baba Sahab Dr. Ambedkar, the representative from Bengal in the Constituent Assembly, and that family also criticized Dr. B.R. Ambedkar. What Baba Sahab could have done and what he has been doing in the Constituent Assembly, the role is not so clear. As Netaji remains a mystery, the role played by Baba Sahab in India's partition, it is also a mystery. We don't know the stand of Simant Gandhi, the role of Simant Gandhi, who could have played a key role, and we know nothing about Mr. Fazlul Haq. He is wiped out from the history of Bengal, from the history of India. And Jogendranath Mandal, the most the closest associate of Baba Sahib, returned from Pakistan. He remained in Pakistan to protect the stranded Hindus in Pakistan, and Baba Sahib advised him to do so. And Muslim League betrayed Jogendranath Mandal. He returned in India and he was treated as a betrayer, a gaddar, and nobody listened to him after he returned to India. And Jogendranath Mandal died in
1968. Baba Sahib died in 1956. Dr. Anand Teltumde said Baba Sahib was indisposed in the last span of his life. He had been active until 53. But Mr. Mandal came back in 51 or 52. It was a short period, of course, but keeping in mind the intensive relationship of Baba Sahib and Jogendranath Mandal, it is a mystery that there had been no correspondence in between Baba Sahib and Jogendranath Mandal after the partition. Baba Sahib wrote the Constitution of India and Jogendranath Mandal wrote the Constitution of Pakistan. Baba Sahib had been the Law Minister of India, independent India, and Jogendranath Mandal was Law Minister of India, the Law Minister in the interim government, and then he became the Law Minister of Pakistan. But they could not connect each other after partition, and Jogendranath Mandal never tried to meet Baba Sahib. However, even in his last speech, Jogendranath Mandal said, Dr. B.R. Ambedkar is my leader. I would be speaking on this topic, but I have to deal this topic in Hindi today because हिंदी जो समझते हैं और जो अंग्रेजी जो नहीं समझते हैं, ऐसे जो आम लोग हैं वो बाबा साहब के भक्त हैं। अनुयायी है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाबा साहब के भक्त हैं और अंधे भक्त हैं। सच का सामना वो करना नहीं चाहते, इतिहास के सामने खड़ा वो होना नहीं चाहते। बाबा साहब को उन्होंने ईश्वर बना दिया और बाबा साहब को फांसीवाद की सरकार भी ईश्वर बना रही है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े ने इसके बारे में खुलासा किया है कि बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने की भारी तैयारी है और बड़ी बड़ी मूर्तियां लगेंगी, बड़े बड़े स्मारक होंगे और बाबा साहब को धर्म स्थल में ईश्वर बना के कैद कर दिया जाएगा। जैसे नेताजी को भी एक आइकन बना दिया गया है। सीमान गांधी को तो लोग भूल गए और जोगेंद्रनाथ मंडल खलनायक बन गए। फजलुल हक का कोई नामो निशान नहीं। आज सुबह ही सुधीर विद्यार्थी जी का फोन आया, वो 8 तारीख को कोलकाता छोड़ के चले जाएंगे और उन्होंने कहा कि मिलना है। तो आज मंगलवार का दिन है, मेरा अवकाश है और उनका बेटा वीडियोकॉन में उनको नौकरी मिली है और सुधीर जी अकेले हैं, बरेली में अकेले रह रहे हैं और 8 तारीख को वो लौट चलेंगे। अभी वो न्यू टाउन में उनके बेटे को कमरा मिला है। न्यू टाउन जाने का मतलब है पूरा दिन खपाना है
क्योंकि ये नया कोलकाता है, राजा हाट के पास है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने यह बहस शुरू की है तो यह बहस खत्म करनी होगी। मैंने सुधीर जी को ऐसा बताया, फिर हमने कहा कि आपने जो कहा है और लिखा है कि बंगाल में नेताजी को तो लोग याद कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का नामो निशान नहीं है, लोगों को जतिन दास भी याद नहीं है। तो मैंने कहा कि बंगाल में जो माहौल है, जो रॉकेट कैप्सूल और जापानी तेल निवेदित शारदोत्सव है, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। खबरों के मुख्य खबरें ब्रेक करने से पहले वो विज्ञापन आता है जापानी तेल और रॉकेट कैप्सूल का। ये हाल है, तो लोग कैसे याद करेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि फजलुल हक के पास बारे में आप जितना जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वीरेंद्रा के बारे में आपकी हमारी राय एक है, हम दोनों उनको जनपद के कभी मानते रहे हैं। मैंने जैसा कहा है, आपने अपने लिखे में मेरा कहा जाने बगैर उसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। तो फजलुल हक के बारे में आपके पास क्या है, क्या आप उस पर लिखेंगे? उन्होंने कहा कि मैं बरेली लौटने के बाद लिखूंगा। मैंने कहा कि फजलुल हक के बारे में लिखना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि वह भारत की पहली प्रगतिशील सरकार थी, कृषक और प्रजाजनों की सरकार थी, और जब तक फजलुल हक का बंगाल के प्रधानमंत्री बने हुए थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की राजनीति खारिज थी, और फजलुल हक की सरकार गिराकर कांग्रेस ने बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनवाई, और इसी मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री सोहरावर्दी की अपील पर बंगाल में, कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन हुआ, जो भारत विभाजन के लिए निर्णायक साबित हुआ। तो फजलुल हक का अवसान भारत विभाजन की एक निर्णायक कड़ी है, उस पर चर्चा जरूरी है। इसलिए भी चर्चा जरूरी है कि भारत में रैयतों और किसानों के हक में कानून पास कराने वाले भारत में बंगाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री फजलुल हक ही थे, और जिस भूमि सुधार की बदौलत बंगाल में वामपंथियों ने 35 साल तक राज किया, और पूरे देश में उनकी जो बची खुची साख है वो भूमि सुधार कार्यक्रम की वजह से। वह भूमि सुधार एजेंडा हरिचंद ठाकुर का था, मतुआ आंदोलन का था, जिसको कंटिन्यू रखा फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी ने। सुधीर जी से बात कर रहा था, तो सविता जी जो एमए इकोनॉमिक्स हैं और मेरे साथ जुड़ी है पिछले 33 साल से, रोज जो मैं लिखता हूँ पढ़ता हूँ तो उसको सुनती देखती रहती है। तो उनको लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। बाद में उन्होंने कहा, क्या आप नजरुल इस्लाम की बात का नाम गलत बोल गए, फजलुल हक बोल रहे हैं। माने उनको मालूम नहीं है कि फजलुल हक कौन थे। उन्होंने मुझसे पूछा अभी कि फजलुल हक कौन थे। मैंने उनको बताया, बंगाल में कोई नहीं जानता कि फजलुल हक कौन थे, और बंगाल के बाहर भी कोई नहीं जानता कि फजलुल हक कौन थे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि फजलुल हक, नेताजी, सीमांत गांधी, जोगेंद्र नाथ मंडल,
और बाबा साहब, ये लोग थे जो भारत को बंटवारे से बचा सकते थे। आज जो मारकाट मची है, आज जो हम आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तौर पे खंड खंड खंडित हैं, आज जो हम अस्मिताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज देश के भीतर जो हिंदू मुस्लिम दंगे की हालत है, जो जाति युद्ध है, जातियों का महाभारत है, जो मनुस्मृति राज है, इसके बारे में जैसे ज्योतिबा फुले ने चेतावनी दी थी, जैसे गुरुचांद ठाकुर ने चेतावनी दी थी। ज्योतिबा फुले ने गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में सहयोग करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका डर था कि कांग्रेस का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे वे भारत में स्वराज का मतलब हिंदुत्व का राज समझते हैं और ब्राह्मणवादी राजतंत्र समझते हैं, राम राज्य समझते हैं। इसी तरह गुरुचांद ठाकुर ने भी देशबंधु और गांधी जी को कहा कि आप दलितों को अपना भाई तो पहले मान ले, दलितों से आप गले तो मिल ले, तब हम सोचेंगे कि आपके स्वदेशी आंदोलन में हम शामिल हो या न हो, क्योंकि अब आपको अगर सत्ता हस्तांतरित हुई तो भारत में दलितों का सत्यानाश हो जाएगा। और इस सत्ता हस्तांतरण के खिलाफ बाबा साहब की क्या भूमिका थी? बाबा साहब की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, साफ नहीं थी, यह बात समझने की जरूरत है। मैंने चूंकि मेरे युवा साथी राम बिहारी सिंह बाबा साहब को इन दिनों खूब पढ़ रहे हैं, वो बाबा साहब के भक्त नहीं है, अनुयायी भी नहीं है और काफी हद तक हिंदुत्व के समर्थक हैं। अभी मोदी के राजकाज को देखकर उनका मोहभंग हुआ है, वरना वो भी चाहते थे मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। अंबेडकर को उन्होंने काफी पढ़ा है, तो यह लास्ट स्पीच मैंने उनको दिया और कल रात अंग्रेजी में इस समस्या को पर अपनी बात रखने के बाद कल रात मैंने राम बिहारी से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? तो राम बिहारी ने यही कहा, जो संजोग बस हमारे विद्वान मित्र आनंद तिलतुमड़े कह रहे थे कि बाबा साहब मनुष्य थे, ईश्वर नहीं। और जो बात कल भी मैंने अंग्रेजी में कहा कि बाबा साहब और जोगेंद्रनाथ मंडल दोनों को अच्छी तरह मालूम हो गया कि अब भारत का विभाजन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रोपोजल पर सहमति दे दी थी और संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब से यही पूछा कि भारत का संविधान का जो फ्रेमवर्क बना है, क्या वह कैबिनेट प्रोपोजल के मुताबिक है? इसका मतलब यह है कि हिंदुत्ववादी ताकतों ने भी कैबिनेट प्रोपोजल पर सहमति दे दी। आनंद जी का कहना है ये कैबिनेट प्रोपोजल का कोई दस्तावेज उन्हें हासिल नहीं हुआ है। हमें नेताजी के 64 डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी के सौजन्य से मिला है और बंगाल कैबिनेट के जो दस्तावेज है वो भी ममता बनर्जी ने
सार्वजनिक किए हैं, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी कहा है, क्योंकि इससे कम से कम एक चीज साबित हो गई कि नेताजी भी भारत में फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, वो बहुलता के पक्ष में थे और वो भारत की विविधता बनाए रखना चाहते थे, वो प्लुरलिज्म की बात कर रहे थे, डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे और उन्होंने स्टालिन के नक्शे कदम पर हिटलर के साथ समझौता करने की कोशिश की। जैसे स्टालिन के साथ हिटलर ने दगा किया, नेताजी के साथ भी हिटलर ने दगा किया। हमने इस पर आनंद जी से बात की। आनंद जी का कहना है कि नेताजी पर बहस हम फिलहाल नहीं कर सकते, ये मेथोडोलॉजी के खिलाफ है, क्योंकि नेताजी भारत के बाहर चले गए और भारत में उनका संदर्भ और उनका प्रसंग खत्म हो गया। आजाद हिंद फौज जो है वो हम उसको आइडेंटिटीज के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे, क्योंकि उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान और स्त्रियों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन आनंद जी का मानना है कि आजाद हिंद फौज में जो भारत से बाहर लोग बसे हुए थे, जो युद्ध बंदी थे, वो लोग उसमें थे। उनमें जो उपलब्ध लोग थे वो आजाद हिंद फौज के सिपाही सालार बने। दरअसल वे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर नहीं सकते थे और आजाद हिंद फौज के जरिए नेताजी भी हम बहुत निर्मम तरीके से सच का सामना करें तो नेताजी भी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। यह इतिहास का निर्मम सच है। तो अब बहस यह होना चाहिए कि नेताजी भारत छोड़कर जाने को बाध्य क्यों हुए। नेताजी जो कांग्रेस को भारत की समस्त प्रगतिशील वाम और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का मंच बनाना चाहते थे, आखिर कांग्रेस का मंच छोड़कर, भारत छोड़कर वो फासीवाद और नाजी ताकतों के साथ गठजोड़ करके भारत को आजाद कराने का एडवेंचर करने को बाध्य क्यों हुए। और यही मौका था कि बाबा साहब जापान और जर्मनी के साथ हमेशा के लिए नत्थी हो गए और भारत के दुश्मनों ने, जिसमें कौन कौन नहीं है यह अभी खुला नहीं है राज, ब्रिटेन की क्या भूमिका रही है, सोवियत संघ की क्या भूमिका रही है, जापान की क्या भूमिका रही है, यह राज भी नहीं खुला है। और ऐसा ब्रिटिश सरकार ने संकेत दिया है कि नेताजी से संबंधित गोपनीय फाइलें वो सार्वजनिक करेगी, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। भारत सरकार के पास जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनका खुलासा नहीं हुआ है, तो यह रहस्य ही रहने वाला है। हम ये मानते हैं, मैंने वाम सेप की सभाओं में और आदिवासी सम्मेलनों में भी बार बार कहा है कि सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लगातार जो किसानों ने विद्रोह किया है, तो उसका हीराबल दस्ता बनकर सबसे आगे नेतृत्वकारी ताकतों के तौर पर आदिवासी रहे। चाहे टाटा, भिलो,
चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हो हो, आदिवासियों के तमाम लोग निरंतर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चुआड़ विद्रोह से लेके तेभागा आंदोलन तक और किसान विद्रोह में यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि भारत के किसान विद्रोह का जो अंतिम रूप है वो नक्सलवाद और माओवादी आंदोलन है, क्योंकि ये किसानों के हक हकूक को बहाल रखने का आंदोलन है, जमीन के हक हकूक को बहाल रखने का आंदोलन है, कृषि भारत का आंदोलन है। लेकिन उनका आंदोलन जंगल तक सीमाबद्ध है, वो जंगल का आंदोलन है और इसीलिए उसका दमन हो रहा है, वह जन आंदोलन नहीं है। तो सिलसिला अभी किसान विद्रोह का, आदिवासी विद्रोह का खत्म नहीं हुआ है और दुर्भाग्य यह है कि आदिवासी भारतीय राष्ट्र के अंग नहीं माने गए, कभी मुख्य धारा में आदिवासी सम्मिलित नहीं हुए। अपने आदिवासी जो मित्र लोग हैं उनको शिकायत रही है कि गांधी और अंबेडकर दोनों ने आदिवासियों की नहीं सुनी, आदिवासियों को संबोधित नहीं किया। यह शिकायत जायज है, यह बहुत भारी भूल है, ऐतिहासिक भूल है, इसका हम महिमा मंडन नहीं कर सकते। हमें इस भूल को सुधारने की जरूरत है। हम ये कहते रहे हैं कि आदिवासी अगर मुख्यधारा में होते, आदिवासियों का अगर नेतृत्व अगर होता और बाबा साहब या गांधी आदिवासियों के साथ होते और सीमांत गांधी भी आदिवासियों के साथ होते, पूर्वोत्तर के जुझारू आदिवासी, मणिपुर, नागालैंड के आदिवासी, मिजोरम के आदिवासी, मध्य भारत के आदिवासी और बलूचिस्तान के आदिवासी, जहां अब अलकायदा का गढ़ है, तालिबान का जो गढ़ रहा है, जो तालिबान और अलकायदा के हमले की जद में है, वो उन तमाम इलाकों के आदिवासी अगर बाबा साहब के साथ होते, बाबा साहब ने उनको साथ लिया होता और गांधी जी ने उनकी सुनी होती, तो गांधी जी का सीना हत्यारों की गोली से छलनी नहीं हुआ होता और बाबा साहब की भी भूमिका भारत विभाजन को रोकने लायक बन जाती, भारत का विभाजन नहीं होता और फासिज्म का या राजकाज नहीं होता। हम बार बार कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं कि ये फासिज्म का राजकाज कोई हवाई किला नहीं है। इसकी शुरुआत पूना पैक्ट से हुई और पूना पैक्ट की वजह से ही बाबा साहब की साख गिरी, क्योंकि पूना पैक्ट में स्वतंत्र मताधिकार की मांग ठुकराकर आरक्षण कोटा के जरिए जाति व्यवस्था को संवैधानिक वैधता दे दी गई और जाति व्यवस्था बाबा साहब के जाति उन्मूलन के एजेंडा के बावजूद खत्म नहीं हो सकती। हमारे युवा मित्र अभिनव सिन्हा और उनके साथियों ने इस मुद्दे पर लंबी बहस चलाई थी और तब हम बाम सेप में थे। बाम सेप की जनता के साथ बाबा साहब के अनुयायियों के साथ हम जुड़े हुए थे। तो उस वक्त हमारा जो दृष्टिकोण और नजरिया और स्टैंड था वह बाम सेप का स्टैंड था और हम उस वक्त उस बहस को
शुरू करने की हालत में नहीं थे कि बाबा साहब का मूल्यांकन भी जरूरी है। अपने डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े ने बाबा साहब की पोती से विवाह किया। बाबा साहब के निकटतम रिश्तेदार डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े हैं। बाबा साहब का सारा लिखा हुआ उन्होंने डिजिटल तौर पर नेट पे सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराया। और हमें खुशी की बात है, खुशी की बात हमारे लिए यह है कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े एकदम वैज्ञानिक की दृष्टि और अकादमिक की विधि के तहत अंबेडकर का मूल्यांकन करते हैं और अंबेडकर को ईश्वर नहीं मानते। रामबिहारी सिंह ने भी वही कहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब उन्होंने जो जवाब हमको दिया वह एक भारत के आम आदमी का जो बाबा साहब को जानने और समझने की कोशिश कर रहा है, भारत के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उस तरह नहीं है और हिंदुत्व के खिलाफ भी उस तरह नहीं है, लेकिन फांसीवादी राजकाज के खिलाफ है, आर्थिक सुधारों की नरसंहार संस्कृति के खिलाफ है। उसकी राय और हमारे डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े की राय एक है। जब परसों रात मैंने जोगन्नाथ मंडल का अंतिम भाषण का डॉक्यूमेंट आनंद जी को भेजा, तब उनने कहा कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये ऑथेंटिकेटेड है। मैंने कहा कि जोगन्नाथ मंडल ने खुद कुछ नहीं लिखा, उनके बेटे ने मंडल के साथ बाबा साहब के जो पत्र व्यवहार हुए और विधानसभाओं में और संसद में भारत के कानून मंत्री बतौर और पाकिस्तान के कानून मंत्री बतौर मंडल के जितने पत्र व्यवहार हैं वो सारा रिकॉर्ड उनके पास है। उनकी फोटोस्टेट कॉपी भी 8 खंडों में जोगन्नाथ मंडल पर जो किताब उन्होंने बांग्ला में लिखी, चतुर्थ दुनिया कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता ने यह पुस्तक पब्लिश किया है। तो यह किताबें चतुर्थ दुनिया के स्टॉल में आपको मिल सकती है कभी भी। तो ये किताबें आप अगर बांग्ला जानते हो तो आप वहां से उपलब्ध करवा ले। तो उन किताबों में वो सारा पत्र व्यवहार है और तत्कालीन समाचार पत्रों की कतरने हैं और विधानसभा और संसद और संविधान सभा के माइन्यूट्स दर्ज है और एनालिसिस उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। जितने दस्तावेज है उन्होंने वो जस का तस रखा है। तो आनंद बोले कि यह सच है कि बाबा साहब और जोगन्नाथ मंडल के रिश्ते भारत विभाजन के बाद बराबर नहीं है। और जोगन्नाथ मंडल ने अगर कहा है कि मैंने मुस्लिम लीग का समर्थन बाबा साहब के कहने पर किया, तो यह सच है। और इसी पर डॉक्टर एस के विश्वास को बाबा साहब की भूमिका पर ऐतराज है। मिस्टर चूमर जो काशीराम जी के सहयोगी थे, उनको पूना पैक्ट पर इसीलिए ऐतराज है क्योंकि सारी गड़बड़ी पूना पैक्ट से शुरू हुई और उसमें गांधी
और अंबेडकर, इन दोनों ने मिलकर भारत की किस्मत का फैसला कर दिया। नौकरियां आरक्षण और कोटे से नहीं मिलने वाली है। तिलतुमड़े ने यह साबित कर दिया है ग्राफिक डिटेल्स के साथ कि 1991 से आरक्षण कोटा 0 है। जैसे रेलवे के कर्मचारी 18 लाख से 13 लाख हो गए, 4 लाख हो जाएंगे। अभी नया जो सुधार का एजेंडा संयुक्त राष्ट्र में तैयार हुआ है, उसमें टोटल एफडीआई, टोटल प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम है। सरकारी कोई महकमा नहीं होगा और जो बाकी महकमा होगा वहाँ स्थायी नौकरियां नहीं होंगी, नौकरियां ठेके पर होंगी और जो वेतनमान उत्पादकता से संबंधित होगा और किसी की भी चटनी कभी भी हो सकती है। नियुक्तियां ठेके पर होंगी और बहुत बचे खुचे सरकारी क्षेत्र की नौकरियों पर जो मजबूत जातियां जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, कोटा और रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, वो दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को इसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अभी पाखंजोड़ छत्तीसगढ़ में बंगाली, मध्य भारत के बंगालियों का बहुत बड़ा रैली हुआ है। वो आरक्षण से वंचित है, मातृभाषा के अधिकार से वंचित है, नागरिकता के अधिकार से वंचित है। सारे भारत में ऐसा हो रहा है और ऐसे आंदोलन उत्तर प्रदेश और असम और दिल्ली सर्वत्र होंगे, लेकिन दलितों की उनसे कोई सहानुभूति नहीं है, पिछड़ों की उनसे कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में इन शरणार्थियों का पुनर्वास हुआ है। मैंने मध्य भारत के आदिवासी नेताओं से बात की, मैंने मध्य भारत के शरणार्थी नेताओं से बात की, मैंने आदिवासी और शरणार्थी नेताओं को साथ बैठा के बातचीत की और मैंने कहा बेदखली का चाक चौबंद इंतजाम है, आदिवासी भी बेदखल हो रहे हैं और शरणार्थियों को जिस जमीन पर बसाया गया वो जमीन बेशकीमती है, इसलिए शरणार्थी बेनागरिक और घुसपैठिए बताए जा रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। तो शरणार्थियों और आदिवासियों का एक साझा मोर्चा बनना चाहिए। आदिवासी तैयार हैं इसके लिए, भारत भर के आदिवासी तैयार है, लेकिन बंगाली शरणार्थियों को यकीन नहीं है, क्योंकि बंगालियों और आदिवासियों के बीच दंडकरण में लगातार राजनीतिक कारणों से झगड़े फसाद होते रहे और उड़ीसा में नौरंगपुर में आदिवासियों ने करीब साल भर तक बंगाली इलाके की नाकेबंदी कर दी थी। तो एक अनास्था का माहौल है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि हिंदू मुसलमानों को देख नहीं सकते और आज गोमांस का मुद्दा, लोग गोमांस खाए या ना खाए, यही मुद्दा खबर है। खबर यह है कि इंद्राणी मुखर्जी ने कितने विवाह किए हैं और उसके किस किस के साथ शारीरिक संबंध हैं। आर्थिक मुद्दों पर कोई खबर नहीं, जनता की तकलीफों पर, बेसिक समस्याओं पर, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, गरीबी और दूसरी बुनियादी समस्याओं पर कहीं कोई खबर नहीं है। किसानों की आत्महत्याओं पर खबर नहीं है, कल कारखानों के बंद होने पर खबर नहीं है, आर्थिक सुधार कैसे लागू हो रहे हैं, बाजार के भावों के अलावा कोई खबर नहीं है। खबरें बाजार का विज्ञापन बन गई है। जैसे कि बंगाल में सब कुछ यहाँ
जापानी तेल और रॉकेट कैप्सूल से नकती है। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब जो मीडिया का रोल है, कलकत्ता में राजनीतिक गुंडों और माफिया लोगों ने नगर निगम के चुनाव में 21 पत्रकारों को, एक दो नहीं 21 पत्रकार, जिसमें बड़े घरानों के सारे पत्रकार हैं, आनंद बाजार ग्रुप के तमाम पत्रकार हैं, जी न्यूज के तमाम पत्रकार हैं और दूसरे बड़े घरानों के सारे पत्रकार शामिल हैं, उनको ढूंढ डाला। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वाम मोर्चा के लोगों ने जुलूस निकाला, प्रेस क्लब के लोगों ने इसके खिलाफ जुलूस निकाला, लेकिन आम लोगों में पत्रकारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं और लोग मजा ले रहे हैं। कल हमसे भी पूछ रहे हैं कि आमराव सांबादिक देर पेटानो हुए थे। और मुझे डर है कि पत्रकार होने की हैसियत से पत्रकारों का इतना भयंकर जन विरोधी रोल है कि जनता खुली सड़कों पर, खुली गलियों में कई पत्रकारों की पिटाई ना शुरू करे। आज राजनीतिक गुंडे पत्रकारों को पीट रहे हैं और जनता की तकलीफों की इंतहा हो गई है, जुल्मों सितम की इंतहा हो गई है और भारत कब्रिस्तान बन रहा है, भारत गैस चैम्बर बन रहा है, भारत मृत्यु उपत्यका में तब्दील है। तो जनता का धीरज जवाब दे जाएगा और राजनीति से मोहभंग हो गया तो पत्रकारों की सामत आने वाली है। और यह जो घटना हुई है कलकत्ता में, पत्रकारों की पिटाई, और देश में जहां तहां पत्रकार मारे जा रहे हैं, सिर्फ पत्रकार बोल रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के हक में जनता नहीं बोल रही है, क्योंकि पत्रकार जनता के हक में नहीं बोल रहे। तो राम बिहारी का कहना यह है कि बाबा साहब ने अगर कांग्रेस के साथ समझौता ना किया होता, पार्टीशन वो रोक नहीं सकते हैं, तो बहुजनों को जो कुछ मिला उतना भी नहीं मिलता। यह बात हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बाबा साहब की सीमाओं को समझने की जरूरत है। बाबा साहब जितना कर सकते थे, बाबा साहब ने उतना किया और बाबा साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ उतना किया। बाबा साहब ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पूर्वी बंगाल में रहने के लिए इसलिए कहा कि तब भी तेभागा आंदोलन चल रहा था और बाबा साहब को मालूम था कि भारत का विभाजन होने वाला है, लेकिन पूर्वी बंगाल के हिंदू बंगाल छोड़कर एक मुश्त पाकिस्तान की तरह आने वाले नहीं है, क्योंकि पूर्वी बंगाल में बौद्धमय भारत की विरासत है और उतने दंगे फसाद नोआखली के अलावा कहीं नहीं हुआ है। अब भी सन 2016 में भी पूर्वी बंगाल में 1 करोड़ हिंदू है। बाबा साहब को उन हिंदुओं की परवाह थी और इसलिए बाबा साहब ने जोगेंद्र नाथ मंडल से कहा कि आपको पाकिस्तान रुक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो फंसे हुए हिंदू होंगे, जो दलित होंगे, उनके हितों की लड़ाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ही लड़ी जा सकती है। कांग्रेस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी। बाबा साहब और जोगेंद्र नाथ मंडल का जो गठबंधन मुस्लिम लीग के साथ रहा है, इसीलिए रहा है। लेकिन इसमें पेच यह है, सिखों ने भी बहुत तगड़े ढंग से पार्टीशन का विरोध किया। मास्टर तारा सिंह ने भरी सभा में तलवार खींचकर निकाली और उन्होंने कहा कि हम बंटवारा नहीं चाहते, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल रहा है, पाकिस्तान को पाकिस्तान, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल रहा है, सिखों को क्या मिलेगा।
बाबा साहब ने या जोगेंद्रनाथ मंडल ने ऐसा नहीं कहा कि दलितों को क्या मिलेगा, बहुजनों को क्या मिलेगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा। सवाल यह है, बाबा साहब ने समझौता किया कांग्रेस के साथ, और आनंद तिलतुम्बड़े का भी कहना यही था कि यह गलत बात है कि हम यह समझते हैं कि संविधान सभा में बाबा साहब की सदस्यता खत्म करने के लिए बरिशाल, जैसोर, खुलना और हिंदू बहुल इलाके पाकिस्तान को दे दिए गए। ये कैबिनेट प्रोपोजल के तहत सौदेबाजी हुई, और वो सौदेबाजी ज्यादातर मौखिक हुई कि कौन से इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, कौन से इलाके हिंदुस्तान में जाएंगे। जैसे कि समझा जाता है कि कश्मीर को भारत में रखना चाहते थे पंडित नेहरू, और इसके लिए उन्होंने पंजाब और बंगाल का विभाजन मान लिया। पंजाब और बंगाल का विभाजन हो गया। विडंबना यह है कि कश्मीर का विभाजन भी हो गया, और विडंबना यह है कि कश्मीर भारत में होने के बावजूद आज हिंदुत्व का राजकाज कश्मीर को भारत से अलग करने का हर जतन कर रहा है। तो और विभाजन का सिलसिला निरंतर चल रहा है। बाबा साहब ने संविधान सभा में जो वक्तव्य दिया वह हिंदू मुस्लिम समस्या को सुलझाने का के बारे में था। उन्होंने कहा 3 ही रास्ते हैं कि या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के आगे समर्थन कर ले, या हम लोग मार झगड़ा फसाद करके आपस में फरिया ले, या फिर हम मिल बैठ के समस्याओं का निराकरण करें। एकता का रास्ता यही है। अगर हम अलग अलग कैंपों में रह के लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को जीतते रहेंगे तो कोई जीत निर्णायक नहीं होगी। खून खराबा लगातार होता जाएगा, देश टूटता रहेगा। वही आज हो रहा है। बाबा साहब ने कहा कि अधिकार काफी नहीं है, अधिकार को सुनिश्चित करना होगा, राइट्स के लिए रेमेडीज चाहिए। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों को बहाल करने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए। अभिनव सिन्हा यही कह रहे थे। इस संविधान में दिया सब कुछ गया है, एक हाथ से दिया गया है, दूसरा हाथ से ले लिया गया है। संविधान में जो प्रस्ताव पारित हुए वो ज्यादातर पंडित नेहरू ने पारित किए, और वो प्रस्ताव श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सहमति से पारित हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपत्ति यह थी कि जो संविधान का फ्रेमवर्क बन रहा है, क्या वह फ्रेमवर्क कैबिनेट प्रोपोजल के मुताबिक हो रहा है, यानी ब्रिटिश हुकूमत ने जैसा भारत का संविधान बनाना चाहा, क्या जस का तस वैसा संविधान बन रहा है। तो बाबा साहब ने इसके जवाब में कहा, संविधान में कैबिनेट प्रोपोजल का उल्लंघन कहा हुआ है। बिहार के तत्कालीन प्रधानमंत्री को आपत्ति यह थी कि इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तो बाबा साहब ने इसके जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग अलग हट चुकी है, और सच यह है कि हिंदुस्तान हिंदुत्ववादी ताकतों को मिला है, एक कैंप को मिला है, और मुसलमानों ने पाकिस्तान मान लिया है। बाबा साहब 2 राष्ट्र के सिद्धांतों की ओर इशारा कर रहे थे, और हम चाहे भी तो कोई सूरत नहीं है कि मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शामिल किया जाए। ओबीसी के मात्र 2 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। दलितों के मुखर प्रतिनिधि बाबा साहब अकेले थे। जोगेंद्रनाथ मंडल उस पार चले गए थे। ओबीसी
मंडल कमीशन के मुताबिक भारत की आबादी के करीब 50% हिस्सा है, उनके प्रतिनिधि सिर्फ 2 थे। बाबा साहब अकेले दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व था नहीं संविधान सभा में, और मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग थी। तो बाबा साहब ने इसके जवाब में यही कहा था, there is anybody who has in his mind the project of solving the Hindu-Muslim problem by force, which is another name of solving it by war, in order that the Muslims may be subjugated and made to surrender to the constitution that might be prepared without their consent. This country would be involved in perpetually conquering them. बाबा साहब ने खुलकर कहा कि संविधान सभा में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संविधान बनाने के लिए मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो मुसलमानों पर संविधान थोपने की कोशिश हुई तो एक निरंतर युद्ध होगा और भारत टूटता चला जाएगा। तो यह हिंदू मुसलमान समस्या को सुलझाने का मौका नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की गैर हाजिरी में संविधान रचा गया है। तो इस संविधान को लागू करने के लिए, कानून और व्यवस्था के राज काज के लिए मुसलमानों की सहमति की जरूरत निरंतर रहेगी और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निरंतर संवाद का सिलसिला जारी रहना होगा। He was speaking about this reconciliation. He was speaking about negotiation. He was insisting on negotiation. He was against the war. He was against identity war. वो कह रहे थे कि हम अलग अलग कैंप के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। भारत आर्थिक और राजनीतिक तौर पे खंड खंड है, हम में एकता नहीं है। भारत को भविष्य का भारत बनाने के लिए, भारत को सपनों का भारत बनाने के लिए, आजाद भारत के निर्माण के लिए एकताबद्ध भारत होना चाहिए। भारत की अखंडता के लिए भारत में जनता के बीच एकता होनी चाहिए। ये बाबा साहब की चिंता का सबब रहा है। यह चिंता सीमांत गांधी की भी रही है और यह चिंता भारत के आदिवासी नेताओं की भी रही है। संविधान सभा में ओबीसी समुदायों की भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए मंडल कमीशन की रपट इतनी लटकती रही। और जब मंडल कमीशन की रपट लागू कर दी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तब से जातीय युद्ध जारी रहा, क्योंकि यह जाति अब खत्म होना बहुत मुश्किल है। लोगों को अब भी उम्मीद है, चौतरफा सर्वनाश होने के बावजूद, दसों दिशाओं से आबाद पूंजी के बावजूद, टोटल प्राइवेटाइजेशन, टोटल एफडीआई के तहत भारत के यूनान बन जाने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के शेयर बाजार में तब्दील हो जाने के बावजूद, 1947 से लगातार जनता के जल जमीन जंगल से बेदखली के बावजूद, किसानों की निरंतर आत्महत्या के बावजूद, कल कारखानों के बंद होते जाने के बावजूद, हमारे युवा जनों के हाथ पांव कट जाने के बावजूद, हमारे व्यापारियों का व्यवसाय बंद होने के बावजूद, हमारे उद्योगों पर माफिया राज, बिल्डर राज का कब्जा हो जाने के बावजूद, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के खत्म हो जाने के बावजूद, हमारे कल कारखानों के बंद हो जाने के बावजूद, हम समझ रहे हैं कि आरक्षण और कोटा से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। और जातियां आपस में लड़ रही है। बिहार में जो महाभारत है वो भारत का महाभारत है।
जातियों का गठबंधन सत्ता के लिए कुत्तों की तरह चीना झपटी कर रही है। और इस मारकाट को हम लोकतंत्र समझ रहे हैं। हमारे चारों तरफ खून की नदियां बह रही है, हमारे दिलो दिमाग से खून बहता जा रहा है, हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग सलवा जुलूम में मारे जा रहे हैं, हमारे लोग फर्जी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, हमारे लोग दंगा फसाद में मारे जा रहे हैं, हमारे लोग सिख जनसंहार में मारे गए, हमारे सिख भाई बहन मारे गए, गुजरात में लोग मारे गए, बाबरी विध्वंसवाद दंगा फसाद में मारे गए, वो भोपाल गैस त्रासदी में खामोश लोग मारे गए जिनको न्याय आज तक नहीं मिला। मुजफ्फरनगर में लोग मारे गए, शहर शहर गांव गांव लोग मारे जा रहे हैं और हमको एहसास भी नहीं है कि हम जख्मी हैं, हम लहूलुहान हैं, हिंदुस्तान लहूलुहान है, हिंदुस्तान टूट रहा है, हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है और हम अपने को आजाद कर रहे हैं, हम अपने को धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं, हम अपने को लोकतंत्र कर रहे हैं। यह शर्मनाक है। हम बेशर्म भारत के बेशर्म नागरिक हैं। मुझे बहुत शर्म आती है कि हमने बाबा साहब का तमाम विपरीत परिस्थितियों में जो किया धरा है उसको बेकार कर रहे हैं और बाबा साहब के नाम पर दुकानें चला रहे हैं। हमने नेताजी और जगन्नाथ मंडल को खलनायक बना दिया, हमने फजलुल हक को बुला दिया और हमने सीमांत गांधी को बुला दिया और तब भी हमने आदिवासियों के नेतृत्व को नहीं स्वीकारा। भारत की आजादी में आदिवासियों के निरंतर बलिदान की कथा को हमने तब भी याद नहीं रखा। आज भी हम न दलितों को, न आदिवासियों को, न पिछड़ों को गले लगाने को तैयार है। जो ज्योतिबा फुले ने कहा था, जो गुरुचांद ठाकुर ने कहा था, वही हुआ। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है जो नेपाल को भी भारत का दुश्मन बना रहा है और राष्ट्र हित के खिलाफ आया है कि भारत के हिंदुत्व राजकाज ने नेपाल को चीन की झोली में डाल दिया है। बहुत विडंबना है। आप सोचे इस पर। आगे भी बातचीत जारी रहेगी। लेट मी स्पीक ह्यूमन। धन्यवाद।